This unique hair care initiative by IPCA. I'm Mona Sharma, and it's my pleasure to be your host today. This unique initiative seeks to provide expert advice for various issues connected with hair care. Our hair is a crowning glory and it makes a world of difference to our appearance. However, our hair also requires special care and attention. Earlier, hair problem was associated with middle age when you used to lose hair or have thinning of hair and bald patchy hair. However, with increasing pollution and the increase of stress in our daily work life, we are now seeing hair problems occurring even at a younger age. It is not uncommon now to see 25 to 35 years old people complaining about hair problems. Most of these problems, if identified early, can be managed well, and much of the hair loss can be avoided and can be fixed by managing to modify our faulty lifestyle. Today, we have with us Dr. Dr. Daniel is a well-known dermatologist and has been practicing medicine for over many years now. He's MBBS and MD in skin specialist. His area of expertise are trichology, dermatosurgery, aesthetic dermatology, and cosmetic procedures. He's currently working as consultant dermatologist at Usha Memorial Skin and Eye Hospital, Bilaspur, Chhattisgarh. Dr. Daniel has dedicated his career to diagnosing and treating a wide range of skin and hair conditions by providing personalized healthcare services to his patient. He take time to listen to his patient concern and work closely with them to develop a treatment plan that meets their individual requirement. Dr. Daniel is aware of the need for the patient awareness and education about hair care and spend a lot of time in giving talks at various platforms across the country. Thank you, Dr. Daniel, for sparing your valuable time to answer a few questions for us. Welcome to the show. Thank you. Dr. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. So, doctor, today we are going to discuss the role of vitamins and mineral in hair loss. So, whenever we talk about hair loss, like hair care and hair loss, the foremost question is what's normal and when to be concerned for, is irrespective of gender or age. Okay, so when we talk about hair loss, or जब हम hair loss के बारे में बात करते हैं, and when to be concerned, या कब हमें चिंता करनी चाहिए कि hair loss बहुत ज़्यादा हो रहा है. So we see that if the hair loss is around 50 to 100 hairs, nobody counts, but it's the scientific data which is available. So if it is more than 100, or if it is according to 150 hairs per day, or if there are patchy hair loss, you can see the patches over the scalp, or if in a female patient, जब बोलते हैं कि जब छोटी पतली हो रही है और थिकनेस थोड़ी कम हो जाती है, then हमको concern होना चाहिए, then we should be concerned about the hair loss. So this is one of the thing, and second thing is in males, in androgenetic alopecia is very common. In females, there is female androgenetic alopecia or alopecia areata, and sometimes after sickness, or in females and after post pregnancy, there is a huge amount of hair loss, and that is a concerning thing for the patient. So then the patient should be concerned about the hair loss. So, doctor, like more than 100 is like alarm sign. मतलब जब 100 से ज़्यादा अगर बाल गिर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए. Yes. Okay. 100 से ज़्यादा 150 तक भी बाल हेयर लॉस होते हैं, तो तब कंसर्न होना चाहिए. ओके, सो डॉक्टर, जैसे कि अब ये तो पता चला कि हेयर लॉस एबनॉर्मल कब है, लेकिन हेयर लॉस होता क्यों? व्हाट आर द जनरल कॉजेस ऑफ हेयर लॉस? Okay, so it's a very big topic. Like there are various causes. We will discuss some of the common causes. और जो बहुत कॉमन कॉजेस होते हैं हेयर लॉस के, उसमें जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में हम बात करते हैं, जो कि हार्मोन्स के कारण से होता है. मेल्स में जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी होता है, जैसे फादर को है तो बच्चे को भी आगे जाके एक एज के बाद होगा. तो ये जो होता है ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण से होता है. इसको हम बोलते हैं मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. उसी प्रकार से फीमेल्स में वी सी की
फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी होता है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसी बीमारियों के साथ होता है। और ड्यू टू द चेंज इन लाइफस्टाइल, और जब आजकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं लोग और फास्ट फूड का चलन है, और people are going out every weekend eating fast food and junk food, and they're not paying more attention to their bodies, so उसमें क्या होता है कि पीसीओडी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। females are having a lot of PCOD and that is causing hair loss। सो ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है। दूसरा होता है कि कोई भी बीमारी के बाद, जैसे अभी पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, तो कोविड के बाद बहुत से पोस्ट कोविड हेयर लॉस मिलने लग गया। पर ये कोई नई चीज नहीं है कि पोस्ट कोविड हेयर लॉस मिल रहा है। कोई भी बीमारी जैसे टाइफाइड हो गया या फिर और कोई मलेरिया हो गया या लॉन्ग टर्म सिकनेस जिसमें रहती है, तो ऐसी बीमारियों के बाद भी हमको हेयर लॉस मिल सकता है। उसको हम बोलते हैं टिलोजन इफ्लूवियम। ये फीमेल्स मेल्स दोनों में पाया जा सकता है। then that could be associated with some hormones like thyroid, और thyroid हार्मोन जो है जो आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट से हमें पता चलता है, तो जो थायराइड का जो हार्मोन होता है उसके कारण से भी जो अपने जो एबनॉर्मेलिटीज मिलती हैं उससे भी एसोसिएटेड हो सकता है। देन हीमोग्लोबिन अगर पेशेंट का कम है, अगर उसको ब्लड ब्लड उसका कम है, तो उसके कारण से भी हेयर लॉस एसोसिएटेड होता है। देन बात करें तो कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, जैसे कि स्कैल्प सोरियासिस हो गया या फिर आपका डैंड्रफ हो गया, सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो हो सकता है। तो ऐसी सब कंडीशंस में डायरेक्ट हेयर लॉस तो नहीं होता, जैसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ के कारण से आपको डायरेक्ट हेयर लॉस नहीं होगा। बट जब पेशेंट उसको स्क्रैच करता है, उसको जब इचिंग होती है, तो उससे जो हेयर फॉलिकल है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसके कारण से भी आपको हेयर लॉस मिल सकता है। तो ये देन मैंने बोला कि टिलोजन इफ्लूवियम जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी मिल सकता है। प्रेगनेंसी के बाद हेयर लॉस होना चालू होता है जब डिलीवरी के बाद, तो उस फीमेल्स में, तो उस वक्त पोस्ट प्रेगनेंसी में भी हेयर लॉस मिल सकता है। एंड it could be also associated due to some other systemic diseases। बहुत सारी systemic diseases हैं, उसके कारण से हेयर लॉस हो सकता है। यदि कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे है, तो उसको भी हेयर लॉस हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी पे है या दूसरे कोई और ड्रग्स चल रहे हैं पेशेंट को, तो उसके कारण से भी हेयर लॉस हो सकता है। तो ये वेरियस कॉजेज हैं हेयर लॉस के, जो हेयर लॉस कर सकते हैं, और वेरियस कंडीशंस हेयर पे अपने कर सकते हैं। फिर एक और जो है स्ट्रेस के कारण से, जो स्ट्रेस होता है लोगों को आजकल की लाइफ में, स्ट्रेस के कारण से भी हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। एक कंडीशन होती है जो यूजुअली एसोसिएटेड होती है स्ट्रेस के कारण से या किसी साइकेट्रिक इशू के कारण से, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। तो ये जो इसमें पेशेंट अपने बाल पे बार बार टच करता है और उससे बाल उखड़ते ऐसे रहते हैं, तो उसको हम ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं। उसके हेयर फॉलिकल का ब्रेकेज हो जाता है उसमें। तो स्ट्रेस के कारण से, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है हेयर लॉस के लिए। तो ये जो है वेरियस कॉजेज हैं हेयर लॉस के। सर जैसे आपने इतना, थैंक यू सर इतना हम Most बताने के लिए। सो डॉक्टर, लेकिन आजकल हम सबकी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है, लेट सोना, लेट जगना, लेट खाना, कुछ भी खाना। सो प्लीज आप हम लोग को थोड़ा और बता सकते हैं दैट कैन अ पर्सन लाइफस्टाइल आल्सो प्ले अ रोल इन हेयर लॉस? Definitely, lifestyle plays a role in hair loss, also in the also for skin and for overall health. Lifestyle is very important. So, प्रॉपर स्लीप एक जरूरी होती है, जो कि 6 से 8 घंटे को हर इंसान को लेना चाहिए, और एडल्ट्स को खासकर 6 आवर स्लीप तो मिनिमम आपको चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो हेयर के लिए भी, क्योंकि वो काफी हार्मोन से भी इशू एसोसिएटेड रहता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, और प्रॉपर प्रोटीन वाला खाना जो होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, अगर आप वैसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो हेयर लॉस के जो कारण है वो कम होंगे।
और उसके बाद जो आजकल फास्ट लाइफस्टाइल में लोग वीकेंड्स पे जो लोग जंक फूड खाते हैं ज्यादा, या फिर हर वीकेंड पार्टी करते हैं, और जो आजकल हम देख रहे हैं कि अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ गया है, स्मोकिंग का कंजम्पशन बढ़ गया है। तो ये सब चीज जो है वो इनडायरेक्टली हेयर लॉस करती है, और इसीलिए हमको जो है आजकल अर्ली एज में हेयर लॉस देखने को मिलता है कि बहुत टीन एज बच्चों को भी हेयर लॉस हो रहा है, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं 11-12 साल के, 13 साल के, उनके बाल सफेद हो रहे हैं। सो इसमें अगर हम प्रॉपर स्लीप रहे, प्रॉपर डाइट रहे, और हेयर केयर हम रेजिमेन अच्छा रखें, अननेसेसरी हेयर केयर प्रोसीजर्स नहीं कराएं, पार्लर्स पे जाके हेयर स्ट्रेटनिंग और बहुत सारे जो प्रोसीजर्स अब कराते हैं, हेयर कलरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर करा लेते हैं। कई लोगों को अपने नेचुरल बाल पसंद नहीं होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के सिंथेटिक कलर लगाते हैं। तो ये सब चीज से जो है हेयर लॉस होता है। तो इन सब चीजों को जो है अवॉइड करना चाहिए। ओके डॉक्टर, वेरी इंफॉर्मेटिव। सो डॉक्टर, लाइक नाउ हम लोग को पता है कि हेयर लॉस क्यों होता है, कॉजेस क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। सो कैन यू प्लीज एनलाइटन अस, व्हाट आर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर हेयर लॉस, लाइक टॉपिकल और सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, और some oral also there, that like we can take the tablets and manage our hair loss. Okay. So for that, first we need to assess the patient. What is the cause of hair loss? There are various causes we have already discussed, और इतने सारे causes होने के कारण से हमको पहले ये पता करना पड़ता है कि हेयर लॉस का कारण क्या है। तो जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो फर्स्ट वी डू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग चेक करते हैं कि टाइप ऑफ हेयर लॉस कैसा है, पैच कैसा है, एज क्या है पेशेंट की, कोई एसोसिएटेड कंडीशन तो नहीं है, उससे हिस्ट्री लेते हैं। जरूरत पड़ने पे हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं, प्लेटलेट काउंट देखते हैं। फिर उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जो कि थायराइड के हार्मोन के साथ भी जो है एसोसिएटेड रहता है। उसके बाद विटामिन डी आजकल बहुत सारे इंडियंस में कम आता है, और इतनी धूप होने के बावजूद भी इंडियंस में विटामिन डी बहुत कम रहता है। लोग शायद कम बाहर निकलते हैं, या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हमारी स्किन। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जब तक रहेगी पेशेंट के अंदर, तब तक हेयर लॉस होता ही रहेगा, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट उसमें कर लें, वो ठीक नहीं होने वाला। सो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो अभी अभी मैं बहुत सारे पेशेंट्स का जैसे मैंने टेस्ट कराया, तो उनका विटामिन डी कम निकला, तो सीरम विटामिन डी हम कराते हैं, फिर उनको विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं। और जब उनका विटामिन डी नॉर्मल आने लग जाता है, तो कभी कभी हेयर लॉस जो है रुक जाता है, अगर इफ इट्स नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर कंडीशन। सो दिस टेस्ट वी डू। इसमें फिर एक और टेस्ट होता है जिसको हम ट्राइकोस्कोपी बोलते हैं, मशीन से चेक करते हैं बालों को कि कैसे इसके वो पैटर्न दिख रहा है, उसके हिसाब से भी जो है ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद हमने टेस्ट कर लिया, और जहाँ जो इन्वेस्टिगेशन नीडेड थी वो कर लिया, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या देना है करके। तो अब हम ट्रीटमेंट पॉइंट में आते हैं। तो जैसे हम बात करें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की, जो कि मोस्ट कॉमन है, तो मेल्स में ज़्यादा होता है, आजकल फीमेल्स में भी हो रहा है। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर उसका जो FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है वो मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड है। तो अब फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, और यूजुअली ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है। उसमें हम पेशेंट के हेयर के हिसाब से उनको जो कैसा उनको शैम्पू करना है और हेयर केयर कैसा करना है, ये काउंसलिंग भी करते हैं। तो उसमें जो है फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल दे देते हैं हम। टॉपिकल आजकल ओरल मिनॉक्सिडिल भी आ गया है, और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल भी आता है, और फिनेस्ट्राइड के साथ कॉम्बिनेशन आता है। तो ये बेसिकली वी नीड टू गिव अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट।
देन देर आर वेरियस न्यूट्रिस्यूटिकल्स कि उसमें जो आपका कोलेजन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो करीब करीब हर लॉस में, हर टाइप के हेयर लॉस में काम करते हैं। तो वो सप्लीमेंटेशन देते हैं, खास करके टिलोजन इफ्लूविया। यदि हम फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमको देख के देना पड़ता है ट्रीटमेंट। और जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसमें एक और ड्रग है जिसको हम बोलते हैं डिटेस्टेराइड, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द हेयर लॉस और डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटिंग डॉक्टर। फिर अगर फीमेल्स में पीसीओडी के साथ एसोसिएटेड है तो फिर उसमें पीसीओडी का भी ट्रीटमेंट जरूरी रहता है, क्योंकि अगर फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो मोस्ट टाइम्स इट इज एसोसिएटेड विद पीसीओडी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद टिलोजन इफ्लूवियम में यूजुअली इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन आते हैं, वो देने से काफी अच्छा रिजल्ट उसमें आता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन कम होगा तो धीरे धीरे करके उसमें जो है आपको रिजल्ट मिलेंगे। फिर उसमें जो टेबलेट्स आपकी बायोटिन सप्लीमेंट्स आती हैं या कोलेजन आते हैं, वो सब यूजफुल हैं उसमें, या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं। फिर वेरियस पेप्टाइड बेस्ड जो सीरम्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं टिलोजन इफ्लूवियम में। और अगर पेशेंट को सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, डेंड्रफ है, तो फिर या फिर टीनिया कैपेटिस है बच्चों में, तो उसमें फ्लूकोनाजोल या ग्रिजियोफिल्विन ओरल देना पड़ता है, साथ में उसको ट्रीट भी करना पड़ता है। तो वेरियस कीटोकोलाजोल या क्लिम्बाजोल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ या लुलिकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज हैं। तो अगर हम उस एसोसिएटेड कंडीशन को ट्रीट करेंगे तो हेयर लॉस अपने आप जो है रुकने लग जाएगा। आफ्टर दैट अगर पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं वो है और उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए या कुछ इंटरवेंशन ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करके पीआरपी अभी बहुत पॉपुलर हुआ है, वो प्रोसीजर कर सकते हैं अपन। उसमें हम जो है ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जो उसको जो सीरम होता है उसका, जिसमें प्लेटलेट्स रहते हैं, उसको इंजेक्ट कर, वो इंजेक्शन से ग्रोथ फैक्टर डिराइव जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं हेयर को, पर साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद और जैसे आजकल हेड हेयर के लिए, जैसे आपकी ज्यादा हेयर लॉस है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है जो करा सकते हैं। यूजुअली मेल्स ज्यादा कराते हैं और फीमेल्स में बहुत रेयर है, पर जो मेल्स हैं वो करा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए उसमें पूरे टेस्ट होते हैं, आपके सब ब्लड टेस्ट पूरे देखने पड़ते हैं, BT CT CBC LFT KFT सब पूरा चेक करते हैं कि आपका सब नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि एक सर्जरी होती है वो पूरी, और करीब 7 से 8 घंटे सर्जरी चलती है। तो इसमें सर्जरी करके भी आप इसको करा सकते हैं। इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टेक्निक से करें। तो यूजुअली उसमें फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन करते हैं, और जो पीछे से जो बाल हैं उसके फॉलिकल को निकाल के आपके सामने की तरफ लगाते हैं। तो उसमें और फिर प्रिकॉशन बताए जाते हैं आपको, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, करीब 7 से 8 घंटे जो है आपकी सर्जरी चलती है। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट भी एक तरीका है। उसके बाद आजकल जो जिनको बहुत ज्यादा हेयर लॉस नहीं है, और जिनको हेयर लॉस थोड़ा बहुत है, या थोड़ा बहुत पैच है, या फिर जिनको किसी ऑटो इम्यून डिजीज के साथ एसोसिएशन है, या फिर सीवियर हेयर लॉस हो गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, थोड़ा बहुत हेयर आया लेकिन नॉट हैप्पी विद द ट्रीटमेंट, तो आजकल जगह जगह पे हेयर स्टूडियोज खुल गए हैं, उसमें आप जो है वेरियस मेल फीमेल्स के पैचेस आते हैं, वो पैच लगा सकते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वेरियस ट्रीटमेंट्स हैं, और वो हेयर कौन सी कंडीशन से एसोसिएटेड है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद
स्ट्रेस एसोसिएटेड जो रहता है और या फिर कोई साइकेट्रिक इशू के साथ एसोसिएटेड रहते हैं जो हेयर लॉस, उसमें कभी कभी वो काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, कि काउंसलिंग काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि कोई पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम सिस्टमिक डिजीज, तो फिर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होगा, और फिर उसके बाद जो हेयर का भी ट्रीटमेंट है वो हमारे पास चलेगा। फिर मेडिसिन, जो एमडी मेडिसिन उनके पास भी रेफर करेंगे, तो पूरा उसका ट्रीटमेंट होगा, तब जाके वो हेयर लॉस जो है वो ठीक होगा। ओके, सो वो बेसिकली हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज मालूम होना चाहिए और यस। ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं। सो डॉक्टर, लाइक आपने स्ट्रेस को बताया, तो कैन यू प्लीज लिटिल एनलाइटन लिटिल मोर अबाउट स्ट्रेस, लाइक इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेयर हेल्थ? ओके, सो बेसिकली जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, जब यह स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, तो आपका जो हर चीज है वो इफेक्ट होती है। आपकी स्लीप नॉर्मल नहीं होती, या फिर आप फूड इनटेक आपका इफेक्ट होता है, या तो उसके कारण से जो हार्मोन्स हैं, जो न्यूट्रिएंट है बाल का, वो इफेक्ट होगा। तो उसके कारण से जो है आपको आपका हेयर लॉस होते रहेगा। तो बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात हम करें तो प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना। हेयर की बात करें तो आपको जो अपने हेयर केयर रूटीन को भी टाइम देना, कि आप प्रॉपर शैम्पू कर रहे हैं, प्रॉपर आप कंडीशनर यूज कर रहे हैं, और प्रॉपर आप ध्यान दे रहे हैं अपने आप को। तो उसमें जो स्ट्रेस अगर हम कम करते हैं, तो फिर हेयर लॉस भी जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जब आप स्ट्रेस, आप मॉडर्न डेज में स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग ध्यान नहीं देते हैं या अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके कारण से जो है हेयर लॉस होता है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो स्ट्रेस की वजह से जो हेयर लॉस होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? यस, दैट इज रिवर्सिबल। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आपका न्यूट्रिशन नॉर्मल हो जाएगा, आप स्लीप अच्छे से लेंगे, तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर, लाइक आजकल सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मोस्टली, तो जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी मम्मी लोग हमें कहते हैं कि ऑयल लगा लो, अच्छे से लगा लो, मसाज कर लो, बाल लंबे करे होंगे, घने होंगे, शाइन करेंगे। तो डॉक्टर, आप क्या सजेस्ट करते हैं? ऑयलिंग हेयर इज boon और अ बैन? And now there are two sides of a coin. If you see a coin, there is heads also and there is tails also, right? So there are two parts of a coin, but it depends कि आपको ऑयल कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। इंडिया में हम देखते हैं कि ऑयल का ओवर यूज होता है। जितनी जरूरत नहीं है हम उससे ज्यादा यहाँ पे ऑयल जैसे यूज कर रहे हैं। और दूसरा चीज, जो कोकोनट ऑयल है, नारियल तेल, वो तो मतलब बहुत ज्यादा ओवर यूज होता है, पुराने टाइम से होते आया है, अब थोड़ा और ज्यादा होने लगे। तो बेसिकली ऑयल जो होता है वो आपके हेयर को, जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, और आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप ऑयल ज्यादा यूज कर रहे हैं, या बहुत रफ उसमें सिर पे आप चंपी कर रहे हैं उससे, और तो उसमें क्या है, हेयर फॉलिकल डिसरप्ट होते हैं और उसमें हेयर लॉस होता है। अच्छा, कई लोग जैसे डेली भी हेयर ऑयल यूज करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, जैसे ट्वाइस और थ्राइस वीकली करें। कौन सा हेयर ऑयल आपके हेयर के लिए सही है वो देखें, उसके बाद यूज करें। जैसे कि, तो जैसे किसी को बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है और वो, और उसमें कोकोनट ऑयल लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, और बढ़ता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि ऑयलिंग करना मतलब, नॉर्मल आपका हेयर है तो आपको कौन सा ऑयल करना चाहिए, और उसको जेंटली अप्लाई करना चाहिए। कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो भी जरूरी है, कि बहुत ज्यादा रफली तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, या बहुत ऐसे चंपी तो नहीं कर रहे हैं, ताकि पूरा जो है आपका बाल में हेयर फॉलिकल में इंजुरी हो रही है और आपको हेयर लॉस हो रहा है।
ओके सो लाइक ऑयलिंग का मतलब ये नहीं कि बाल ग्रो करेंगे, इट्स फॉर न्यूट्रिशन एंड चमकी। नो, आई वाज सेइंग कि ऑयलिंग का मतलब ये है कि आपके जैसे ड्राई फ्रिजी हेयर हैं उसको आपको मॉइस्चराइज होगा, जैसे एकदम बाल जो सूख सूख के टूट रहे हैं आपके या ड्राई हो रहे हैं, उसके लिए ऑयल अच्छा है. बट ऑयल एप्लीकेशन शुड बी जेंटल, नॉट रफ. That was I was trying to say. And then when to apply oil and how much to apply oil, ये भी important रहता है. वो पेशेंट टू पेशेंट और पेशेंट के हेयर के हिसाब से डिपेंड करता Okay, doctor. So, doctor, can you give us some important tips for healthy hair? है. Okay, so this for important tips from some healthy hair are कि आपको first is the good lifestyle. I always say कि better lifestyle, stress free life is very good. So हमको पहले तो स्ट्रेस को कम रखना है, और स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस कम रखना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है. स्ट्रेस कम करने के लिए आपको आप अपनी कुछ, क्योंकि अगर स्ट्रेस आपका कम रहेगा तो सिर्फ हेयर नहीं और भी बाकी जो भी डिजीजेस हैं वो आपको कम होने के चांसेस हैं. अगर स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो देर आर लॉट ऑफ सिस्टमिक डिजीजेस और उसके कारण से भी हेयर लॉस होते हैं. तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मस्ट. देन प्रॉपर यूज ऑफ कोम्स, की आप कोमिंग कर रहे हैं हेयर का, प्रॉपर हाइजीन रख रहे हैं, प्रॉपर हेयर वॉश कर रहे हैं, शैम्पू पैराबिन और सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज कर रहे हैं, और अननेसेसरी आप हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं करके एकदम ज्यादा रफ आप कोमिंग नहीं कर रहे हैं, जेंटल कोमिंग कर रहे हैं. तो देन जो आजकल बहुत सारे जो पार्लर वाले प्रोसीजर्स होते हैं, और जब तक नॉट नीडेड नॉट नेसेसरी नहीं कराना चाहिए. इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, सम में से कि कराना चाहिए, बट माय पर्सनल ओपिनियन इज व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी, don't go for it because it causes unnecessary damage to the hair follicles. So then proper use of there are also, apart from oils, there are also hair moisturizers that can be used, so which gives good moisturizations to the hair. It comes as a hair moisturizer or hair mask, and I recommend using it. And then if any condition, if the hair loss is from prolonged period, if not, if it is not going away और बहुत समय से hair loss चल रहा है, so it's necessary to consult a qualified dermatologist or a trichologist so that they can give you the advice for it. How, what you can do to prevent or to stop the hair loss. Okay, doctor, this discussion was very informative. I'm sure our viewers would be benefited by it. So, doctor, can we take some live questions from our audience? Yeah, sure. Okay, the first question from our live audience is, Doctor, I'm suffering from androgenic alopecia, and someone told me that home remedies like lemon and onion juice can help me to grow my hair back. So, can I use it? Well, there are no scientific proven evidence that lemon or onion juice can get hair back in androgenetic alopecia. This question was specific for androgenetic alopecia. For androgenetic alopecia, you have to consult a qualified dermatologist or a trichologist and get with the treatment, because the onion, there are onion oils in market, but that it doesn't say, or the studies doesn't show any that that oils can or that shampoos can grow hair. So I would suggest that to consult a qualified dermatologist for the same and get proper treatment. So, doctor, in general, like ये home remedies काम करती है hair loss के लिए in general? In general, like okay, there are no proven studies to show that these home remedies work.
एंड वी नो दैट कि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा चलन है कि पहले जो है वो घर के नुस्खे यूज करेंगे, पूरा इस्तेमाल करेंगे, फिर वो डॉक्टर के पास आएंगे. So with the amount of patient coming with the hair loss daily in OPD, मुझे नहीं लगता कि ये जो होम रेमेडीज है वो काम करती है करके. अगर आपको सीवियर हेयर लॉस है तो होम रेमेडीज से बाल तो आना मुश्किल. So better we visit to the doctor and get our Yes. treatment. Another question from our viewer is, डॉक्टर मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, तो क्या वेट गेन के कारण मेरा हेयर फॉल है? अब यस, अगर वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपके हार्मोनल लेवल्स इफेक्ट होंगे और उसके कारण से जो है आपको हेयर लॉस हो सकता है. सो ओबेसिटी आल्सो इज एसोसिएटेड विद many अदर कंडीशंस लाइक हाइपोथायराइडिज्म में भी जो है वेट गेन होता है. तो इसलिए जो है रिडक्शन ऑफ वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ इट्स अ फीमेल पेशेंट, अगर पेशेंट फीमेल है तो फिर उनको पीसीओडी होने की संभावना रहती है, ज्यादा वेट है तो उसके कारण से भी जो फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है वो हो सकता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ द वेट टू प्रिवेंट द हेयर लॉस. Okay. Another question from our viewer is, डॉक्टर मैं वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट शुरू की थी, मेरा वेट लॉस हो रहा है लेकिन अचानक से अब हेयर फॉल चालू हो गया है, तो ये क्यों हो रहा है मुझे? इट्स बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी. आप क्रैश डाइट पे जाते हैं, आपको वेट लॉस करना रहता है तो आप डाइट करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं और एक्सेसिव डाइट करते हैं, और वो एक्सेसिव डाइट में जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेयर को नहीं मिल पा रहा है. तो आई वुड प्रेफर अ बैलेंस डाइट ओवर अ क्रैश डाइट, कि आप बैलेंस डाइट करें या फिर आपको करना है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें. ऐसे क्रैश डाइट पे नहीं जाएं. और तो उसके कारण से जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण से हेयर लॉस होता है. सो आई वुड प्रेफर एंड आई वुड सजेस्ट कि नॉट टू डू अ क्रैश डाइट if you want your skin and hairs to be healthy and if you want your body to be healthy. ओके डॉक्टर, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, डॉक्टर मुझे रिसेंटली आयरन डेफिशिएंसी डायग्नोस हुई है, तो क्या मेरा हेयर फॉल आयरन डेफिशिएंसी के कारण है या फिर मुझे डॉक्टर को जाके पता करना चाहिए क्यों हो रहा है हेयर लॉस? Well, iron deficiency anemia is a very common cause of hair loss in India, especially in females. तो मोस्टली अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हेयर लॉस इज प्रोबेबली ड्यू टू दैट कॉज ओनली. तो उसमें जो है आपको जब वो सप्लीमेंट्स लेंगे, आप आयरन सप्लीमेंट्स लेंगे, उसके कारण से जो फिर है आपका हेयर ग्रोथ हो सकता है. अगर if the hemoglobin is increasing and still the hair loss persists, then they should consult a dermatologist. Okay. Another similar kind of a question from our viewer is, sir, my hair is falling. What should I do? My weight is 80 kg and does gaining weight cause hair breakage? Okay. So first is the proper exercise and proper diet. Reduce of the reduce junk food in the diet and eat take proper water intake should be increased. And the patient should do some proper exercise, and that will help to prevent and to treat the hair loss. Okay. Another interesting question is, डॉक्टर मेरी वाइफ बिना जाने अपने बाल अपने आप ही तोड़ती रहती है, खींचती रहती है और उसको पता भी नहीं चलता है, तो ये क्या प्रॉब्लम है? उसको कुछ हेयर में प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? Maybe the wife is in stress, और हो सकता है कि उसको स्ट्रेस ज्यादा हो रहा हो. तो बेसिकली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को वो कंसल्ट करें और एक बार उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन
करके ही पता चल सकता है कि वो कहीं वो ट्राइकोटिलोमिनिया तो नहीं है, या फिर स्कैल्प में कोई और कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि सिबोरिक डर्माटाइटिस, या उनके अगर इचिंग हो रही है वहां पे उसके कारण से बाल टूट जा रहे हैं। सो ये स्कैल्प सोरियासिस की दिक्कत तो नहीं है, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। Another question is, doctor, can I go to skin specialist also for my hair loss? Yes, actually this is a very common misconception कि स्किन स्पेशलिस्ट के नाम से लोग सोचते कि वो हेयर नहीं देखते करके। सो skin specialist examines and treats all hair, skin and nail disorders. And also they specialized in STD, venereology and leprosy also. So sure, they can consult a qualified dermatologist. Okay. Another question from our viewer is, डॉक्टर मुझे आपके जैसे बाल चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है? I think कि उसके लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता, मुझे लगता है कि जेनेटिक है मेरा, और मेरे जो है मतलब, लेकिन बस ये है कि मैं एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ और प्रॉपर हेयर केयर। द बेसिक फंडा इज कि आई लाइक टू हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा स्ट्रेस है उसको मैं जितना भी लोअर रख सकूं। दैट्स ऑल। थैंक यू। Very interesting, doctor. Another question is, doctor, my daughter is just 12 years old and she go to school, but she's having hair loss and also gray hair. So she's just young. Why she's having gray hair and hair loss? Gray hair is associated with usually calcium pentothenate deficiency and also biotin deficiency. So I would suggest they should consult a dermatologist, and usually it is, I heard the age 12 years, right? Yes. Usually at 11 or 12 years, it could be reversed. But later on in the age, it is irreversible, usually not responding to treatment. But this age, patient can, the graying of hair and the hair loss could be reversed. So they should consult a dermatologist for the same. Okay, doctor, because we are running out of time, I quickly ask the last question from our viewers. Sure. डॉक्टर, क्या आयुर्वेदिक मेहंदी बेटर है या हेयर कलर बेटर है? कौन सा अच्छा है हेयर हेल्थ के लिए? Okay, so आयुर्वेदिक मेहंदी और इसके बारे में पूछा है हेयर हेल्थ के लिए। हेयर कलर। सो बेसिकली द हेयर कलर जो सिंथेटिक नहीं हो, इट्स ओके, इट्स गुड। In both the cases, I would prefer कि आयुर्वेदिक मेहंदी better है, but there are also good hair colors which are not synthetic, that doesn't contain like paraben and sulfate, so that can also be used. Okay. The last viewer is asking, please मेरा question पूछ लो मैम। डॉक्टर, मुझे कोविड हुआ था 2021 में, उसके बाद से मुझे सीवियर हेयर लॉस हो रहा है, तो क्या कारण है ये? कोविड 21 में हुआ था? हाँ। सो इसके लिए तो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी और कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 21 में कोविड हुआ था और अभी 23 तक आपको हेयर लॉस चल रहा है। सो इट्स वेरी प्रोलॉन्ग एंड इट्स वेरी अनलाइकली कि वो कोविड के कारण से अब तक रहेगा। हालांकि पोस्ट कोविड हेयर लॉस होता है, लेकिन इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूजुअली नहीं चलता है। तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, और एक जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या ट्राइकोलॉजिस्ट हैं आपके आसपास, उनसे जाके आप मिलिए और प्रॉपर कंसल्टेशन सलाह लेके फिर ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करिए, और उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। Okay, doctor. Doctor, would you like to give a take-home message or any other suggestion to our viewers today? Okay. So I would just say कि
जो हेयर लॉस है उसके लिए आपको प्रॉपर हेयर केयर करना है। आपको हेयर अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ रखनी है। अवॉइड जंक फूड एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और अगर आपको हेयर का कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, so please consult a qualified dermatologist and don't try the over the counter drug और खुद से ट्रीटमेंट करके हेयर लॉस को और ज़्यादा बढ़े उससे पहले ही आपको रोकना चाहिए। तो आपको जाके जो है क्वालिफाइड एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक यू। Oh, thank you, doctor, for sharing so much of information and all your expertise with us थैंक and यू। थैंक answering all the questions of our viewers today. I'm sure our viewers have found the session very helpful. And thank you, doctor. It was a delight to have you. And thank you for your valuable time. यू। Thank you, ladies and gentlemen, for